Good morning, students. Today I am going to discuss the summary of the poem The Season of the Plains, written by Shahid Ali, a well-known poet and writer. The first stanza is: In Kashmir, where the air has 4 clear seasons, my mother spoke of her childhood. In the plains of Lucknow, and of that season in itself, the monsoon, when Krishna's flute is heard on the shores of the Yamuna. She played old records of the Banaras Thumri singers, Siddheshwari and Rasloon, their voices longing when the clouds gather for that invisible blue god. Separation cannot be born when the rains come. This every lyric says. First of all, I will read the whole stanza, and after that I will explain the poem. While children run out into the alleys, soaking their utter summer, messages pass between lovers, Heer and Ranja and others, of legends, their love forbidden. One essence all night, waiting for answers. My mother hummed Heer's lament, but never told me if she also warned sticks of jasmine that, dying, kept raising soft necks of ash. I imagined each neck leaning on the humid air. She only said the monsoons never cross the mountains into Kashmir. Now, you will see in the first stanza, in Kashmir, where the air has 4 clear seasons, my mother spoke of her childhood. So, from the first stanza, it is clear that the season of the plains is a fine poem written by Shahid Ali. Unlike many poems written by English poets, it does not describe seasons of the year. ठीक है? When I go through this whole poem stanza by stanza, you see that this poem not explains the seasons of the years. It just talks of the monsoon season. ठीक है? The poem does not describe or explain seasons. It just tells us how in monsoon lovers find separation unbearable, and so use all possible ways of communication to exchange messages of love. Okay. Now, in Kashmir, where the air has 4 distinct and well-defined seasons, the poet's mother spoke of her childhood. She had spent her childhood in the plains of Lucknow. She also spoke of the seasons called the monsoons in its true nature. In its true nature, it is during the monsoon season that the atmosphere It is due to the monsoon season that the atmosphere have melodious tunes played upon the flute. The tunes are heard on the shores of the Yamuna. The poet's mother played old records of the Banaras Thumri singers, that are the prominent singers known as the prominents among them being Siddheshwari and Rasloon. The voices of these singers have a characteristics desire. They have longing. Longing means a desire for the visible Lord Krishna, the blue god. Blue god यहाँ पे किसको बोला गया? Lord Krishna को. Every song or lyric says that separation becomes unbearable when the monsoon rains comes. The poet talks of separation of lovers. So, the separation becomes unbearable for lovers from their beloveds. They long to be united, especially in the monsoon rains. Children too rejoice in this season. Children also enjoyed the rainy season, also enjoy this season. They run out into the passages behind or between the buildings and get totally drenched in the monsoon rains throughout summer. Throughout summer season. Lovers, strangely enough, become active in a different way. Messages of love pass between them with greater frequency. Many of them are inspired
by the lovers such as Heer and Ranjha, who had to continue their love secretly but sincerely. They should be revealed in their heart pursuit. Social, religious, and caste-based binding do not let them love openly and freely. Means they have therefore to use the sending and receiving method regarding their love through messages. They have to wait all night for receiving answers. The poet's mother, while listening to the recorded songs of prominent singers, would also sing or hum Heer's pain and grief resulting from longing for Raja, what she never told her son, the poet, if she too waited for messages of love from the one she loved. Instead of that, she only said that the monsoons never crossed the mountains into Kashmir. तो अभी हमने इसकी समरी जो है मैंने पूरी एक्सप्लेन की है इंग्लिश में, होप आपको समझ आई होगी. कंप्लीट समरी ऑफ द पोइम द सीजन ऑफ द प्लेन्स. तो सीज़न ऑफ द प्लेन्स में एक्चुअली यहाँ पे मानसून सीज़न की बात की गई है और बताया गया कि किस तरह से मानसून सीज़न में जो ओवरऑल जो मेन पॉइंट्स मैं वो डिस्कस कर दूंगा. अभी बता रहा हूँ आपको कि कश्मीर में यहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं. तो जो शाहिद अली है जो पोइट है, उसकी मदर जो है किसकी बात कर रही है, वो प्लेन्स ऑफ लखनऊ की बात कर रही है, अपने चाइल्डहुड की बात कर रही है कि मानसून सीजन में क्या होता है कि जहाँ पे आपको यमुना नदी के किनारे जो कृष्णा की जो फ्लूट होती है, बांसुरी है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है. उसके साथ साथ उसने जो ओल्ड रिकॉर्ड से बनारस ठुमरी सिंगर्स जो वहाँ के जो सिंगर्स हैं उनकी बात की हुई है लेसन्स में, और किस तरह से बात की गई है कि किस तरह से पूरी पोइम में जो लवर्स होते हैं वो मानसून सीजन में जो ऋतु सीजन होती है, वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में क्या करते हैं वो किस तरह से उनको सेपरेशन जो होती है उनके लिए अनबियरेबल हो जाती है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, और किस तरह से वो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं. सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं उनको वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो आपस में मिल नहीं पाते. उसके साथ साथ एक पिक्चर आप देख रहे हो किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो इंजॉय करते हैं इस सीज़न को, और किस तरह से वो क्या करते हैं बच्चे बाहर जो बारिश में किस तरह से पूरे अपने आप को भिगो देते हैं, किस तरह से अपने आप को पूरे जो होते हैं क्या वहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया सोकिंग देयर अटर समर, जिसका मतलब क्या होता है कि जब व्हेन मानसून रेन कम्स इन समर इन द प्लेन्स ऑफ लखनऊ, चिल्ड्रन एंजॉय टू देयर हर्ट by coming out into the rain throughout the summer and letting themselves to be drenched to the skin. This makes them happy and glad. कि बच्चे क्या करते हैं बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल आराम से वो मज़े से क्या करते हैं अपने आप को पूरा भिगो देते हैं. किस तरह से, तो उसको बोला गया सोकिंग देयर अटर समर, तो पूरा उसको इंजॉय करते हैं. लव फॉरबिडन एक फ्रेज यूज़ किया गया था इसमें. लव फॉरबिडन जो है वो सिग्निफिकेंट यहाँ पे इज़ ए क्वाइट सिग्निफिकेंट. इट मीन्स दैट लव सच एज इंस्पायर्ड Heer and Ranjha in ancient times is not allowed to be encouraged between young men and women out of social, religious and other such consideration. अगर आपने हीर और रांझा के बारे में सुना होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से जो एंशियंट टाइम के जो लीजेंड्स जिनको बोला गया, स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम दैट मे आर मे नॉट बी ट्रू. तो मैसेज जो लवर्स होते थे सोसाइटी के नाम्स के कारण वो आपस में मिल नहीं पाते थे, सिर्फ वो अपने मैसेजेस एक्सचेंज करते थे और पूरी पूरी रात वो वेट करते थे मैसेजेस का कि वो अपनी मैसेजेस जो थे वो उसको पास कर सकें एक दूसरे को. वो अपने मैसेज भेजने के लिए पूरी पूरी रात वो वेट करते रहते थे. पूरी पूरी रात वो या क्या करते थे, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाते थे अपने आप को. ठीक है, दे राइट मैसेजेस ऑफ लव एंड वेट फॉर आंसर्स आर लाइट एज दे डू सो दे कीप ऑन बर्निंग इसेंस थ्रू आउट द नाइट. जिस तरह से जहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में अगरबत्ती जो है जलती है, ठीक है, अगरबत्ती जल रही होती है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो जल तो जाती है लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर कहीं ना कहीं जलने के बाद भी जो उसकी ऐश होती है वो खड़ी रहती है, कुछ देर की वेट करती रहती है. ठीक है, उसी तरह से लवर जो होते थे वो पूरी पूरी रात जो होते थे वो वेट करते रहते थे और ताकि वो जो उनको मैसेजेस वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकें और वो रिसीव कर सकें मैसेज. ठीक है, जो भेजते थे उसका रिप्लाई वो वापस ले सकते हो. इस तरह से कहीं ना कहीं जो पूरी पोइम हम कह सकते हैं इसमें सीजन्स की बात नहीं की गई है. इसमें एक तो आपको पता है कि इसमें किसकी बात की गई है, वर्षा ऋतु की बात की गई है, मानसून सीजन की बात की गई है और उसके साथ साथ लवर्स की बात की गई है कि लवर्स किस तरह से वेट करते थे और किस तरह से वो मैसेजेस को एक्सचेंज करते थे. उसके साथ साथ बच्चे जो होते थे वो क्या करते थे
बिल्डिंग के बीच में से जो रास्ता होता है, जैसे गलियां होती हैं छोटे छोटे जो रास्ते, नैरो पैसेजेस होते हैं, उसमें से वो भागते थे और अपने आप को पूरा भिगो देते थे अपने आप को। और उसके साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पोइट है उसने किसकी बात की, यमुना नदी की बात की। यमुना जो है द नेम ऑफ एन इंडियन रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ बीच लॉर्ड कृष्णा वुड सिंग ऑन हिज फ्लूट, तो उसकी बात की गई है वहाँ से। और उसके साथ साथ टू फेमस ठुमरी सिंगर्स ऑफ बनारस, उनकी बात की गई है इस पोइम में। यहाँ पे इनविजिबल ब्लू गॉड की बात की गई है, जो कि लॉर्ड कृष्णा की बात की गई है, ठीक है। इनविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन। उसके साथ साथ यहाँ पे किसकी बात की गई है, हीरो रांझा की बात की गई है, जो लीजेंडरी ओल्ड बिलव्ड, जिसको हम कहते हैं लवर थे, हु वर ओवर हैड एंड ईयर्स इन लव विद ईच अदर। जहाँ पे हीर रांझा जो थे वो लीजेंडरी जहाँ पे लवर थे, जिनकी हम बात करते हैं, जिनको आप एंशियंट टाइम की जो स्टोरीज़ में आप उनका नाम हीरो रांझा का देखते हैं, उनकी एक एग्जांपल हम देते हैं आज के टाइम में। और उसके साथ साथ पूरी पोइम में कहीं भी आप देखोगे सीजन्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बल्कि उस टाइम में जब मानसून सीजन आता है तो क्या रिएक्शन होता है उस चीज़ की बात की गई है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पूरी पोइम है उस पोइम में हमें कहीं ना कहीं सीजन ऑफ द प्लेन्स, जो हमारा जो टाइटल है इसका, उसको किस तरह से जस्टिफाई किया गया वो हम इस पूरी पोइम में देख रहे हैं। होप आपको पोइम जो है वो समझ आई होगी। अब नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।